Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are here going to talk about the topic cost center and cost category. So before moving ahead to the today's topic, let's have a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations, and development. We are also in the multiple softwares. So first is Tally Prime, second is SAP Business One, third is Bittrex 24 CRM, and fourth is Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. So the presentation will be done by Ms. Tejashri. So Tejashri, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Miss Aarti. So Aarti, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, good evening, Anga. I am available over here. Okay. So hearty welcome all of you. So now we request Tejashri and Aarti to move ahead with our presentation. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, screen visible है? Yes, it's visible. Okay. So hello everyone. Good evening. Myself Tejashri, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our entire Rajlakshmi family. Welcome to all of you. So our today's webinar topic is cost center and cost category in Tally Prime. So let's begin with the first slide, that is cost center. The cost center could refer to an organizational unit to which cost or expenses can be allocated during transactions. So basically cost center तब यूज होता है जब कोई भी आप ट्रांजेक्शन आपके टैली में मेंटेन करते वक्त इसमें कितना कॉस्ट लग रहा है ये एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में मेंटेन करने के लिए या फिर एलोकेट करने के लिए मदद करता है. A cost center is nothing but a separate department within a business to which cost can be allocated. कॉस्ट सेंटर एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें आप आपके पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ बिजनेस अलोकेट कर सकते हो. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स डिपार्टमेंट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली बट इनकर कॉस्ट टू द बिजनेस. कॉस्ट सेंटर में हम और भी डिपार्टमेंट मेंटेन कर सकते हैं जो इनडायरेक्टली कॉस्ट जनरेट नहीं करते. For example, the manager and employees of the cost center are not accountable for the profitability and investment decision of the business, but they are responsible for its cost. जैसे कि बिजनेस का मैनेजर हो या फिर एम्प्लॉय का कॉस्ट सेंटर कोई भी प्रॉफिट डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अकाउंटेबल नहीं है, बट वो उनके कॉस्ट मेंटेन करने के लिए यूज हो सकता है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, creation and report of cost center. If you are creating cost center for the first time, Tally Prime promotes you to enable cost center for the company, that is gateway of Tally, then create, then cost center, and then press enter. Alternatively, press Alt G, that is go to option, then create master, then cost center, and then press enter. So टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट होगा ये हम देखेंगे. जैसे कि पहले बार अगर आप कॉस्ट सेंटर टैली प्राइम में मेंटेन कर रहे होंगे तो आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन कंपनी फीचर में जाके अनेबल करना होगा. देन आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हो. फर्स्ट आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं टैली में. जैसे कि आप पहले गेटवे ऑफ टैली में जाके क्रिएट ऑप्शन में जाके कॉस्ट सेंटर को प्रेस एंटर करके अनेबल कर सकते हो. देन सेकेंड ऑप्शन इज आप Alt G मतलब गो टू का ऑप्शन यूज करके क्रिएट मास्टर से जाके कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हो. फॉर रिपोर्ट कॉस्ट सेंटर समरी, प्रेस Alt G, that is go to option, type or select cost center summary. Alternatively, gateway of Tally, display more reports, statement of accounts, and then cost center or then cost center summary. जैसे कि टैली में आपको कॉस्ट सेंटर का समरी रिपोर्ट शो करने के लिए आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं.
आप दो तरीके से रिपोर्ट या फिर कॉस्ट सेंटर की समरी देख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है आप डायरेक्टली गो टू स्टेज सर्च करके या फिर टाइप करके कॉस्ट सेंटर की समरी देख सकते हो। अल्टरनेटिवली आप गेटवे ऑफ टैली में जाके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करके आप कॉस्ट सेंटर समरी देख सकते हो। दिस रिपोर्ट डिस्प्लेज द समरी ऑफ income and expenses allocated to different cost centers और profit centers। तो आपको रिपोर्ट में आपके जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस आपने अलोकेट किए हैं एक डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के अंडर, वो आप रिपोर्ट में देख सकते हो। देन नेक्स्ट स्लाइड इज कॉस्ट कैटेगरी। Cost categories are useful for organization that require allocation of revenue and non-revenue items to parallel set of cost centers. Cost category facilitates third dimensional reporting of expenditure and revenue. So जैसे कि हमें पता है कॉस्ट कैटेगरी हमें हेल्प करता है रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू जो आइटम्स है उनको प्रॉपर अलोकेट करने के लिए और यूज करने के लिए। उसके साथ साथ आप कॉस्ट कैटेगरी यूज करके एक डेप्थ में रिपोर्ट भी देख सकते हो। हर एक खर्चे का आप हर एक और रेवेन्यू का जो भी आपने अलोकेट किया है वो आप उसके रिपोर्ट में देख सकते हो कॉस्ट कैटेगरी के। देन यू कैन यूज कॉस्ट कैटेगरी, you can allocate in parallel a transaction to more than one set of cost center। एक कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आप अनेक कॉस्ट सेंटर अलोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल cost centers such as marketing, finance and manufacturing can now belong to category departments। Salesperson, that is A, B or C, be the cost center under the category executive। जैसे कि कॉस्ट सेंटर है, आपने मार्केटिंग, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग का बनाया होगा, तो आप एक डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि आप उसका नाम रख सकते हो कैटेगरी का डिपार्टमेंट, उसके अंदर आप मार्केटिंग, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर सकते हो। ऑल्सो आप अगर सेल्स पर्सन है आपके पास जैसे कि ए, बी और सी, तो उनके अंडर उनको आप एग्जीक्यूटिव के कैटेगरी के अंडर आप रख सकते हो। So moving on to the next slide, creation and report of cost category. If you are creating cost category for the first time, Tally Prime promotes you to enable cost category for the company. That is gateway of Tally, then create, then cost category and then press enter. Alternatively, आप press Alt G, that is go to option, then create master, then cost category and then press enter। जैसे कि हमें पता है कॉस्ट सेंटर हमने क्रिएट किया था, उसी तरीके से हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। हमें फर्स्ट ऑप्शन में आप गेटवे ऑफ टैली से भी क्रिएट कर सकते हो। गेटवे ऑफ टैली पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट में जाके कॉस्ट कैटेगरी एंड देन प्रेस एंटर करके कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही आप गो टू का ऑप्शन यूज करके क्रिएट मास्टर में जाके कॉस्ट कैटेगरी को एंटर करने के बाद आप कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। फॉर रिपोर्ट कॉस्ट कैटेगरी समरी, दिस रिपोर्ट डिस्प्लेज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अलोकेटेड टू पैरेलल सेट ऑफ कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर इन योर बिजनेस। रिपोर्ट देखने के लिए हम सेम गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड देन कॉस्ट सेंटर में क्लिक करने के बाद कॉस्ट कैटेगरी का समरी हम देख सकते हैं। ये रिपोर्ट में आपको कितना एक्सपेंसेस आपने किया है या फिर कौन से कैटेगरी के अंडर आपने रेवेन्यू जनरेट किया है वो देख सकते हो। So now that's all from my side. I would like to hand over to Miss Aarti for further demonstration. Thank you so much. Thank you, Tejasri. Hello, good evening, everyone. Myself, Aarti Narode, representing live demo of cost center and cost category in Tally Prime on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. So let's start.
Ma'am, my screen visible? Yes, it's visible. Okay. Yes, it's visible, Aarti. ओके अभी हमने मैंने क्या किया, अभी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का हमें टैली प्राइम में कैसे यूज करते हैं वो देखना है। तो कॉस्ट सेंटर में क्या होता है कि आप एक्सपेंसेस को अलग अलग पार्ट में दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने सैलरी पेड की है 20,000 रुपए, तो आपको आपने किस किस को सैलरी पेड की है वो आपको अगर मेंटेन करना है तो आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी मेंटेन करके आप देख सकते हो। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अभी हमें सैलरी पेड ₹20,000 टू वर्कर फ्रॉम कैश। तो अभी हमें ये एंट्री टैली प्राइम में करनी है, तो उसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर पहले एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो वो हम कहाँ से करते हैं, F11 में इनेबल कॉस्ट सेंटर, इनेबल कॉस्ट सेंटर को यहाँ पे यस करने का। उसके बाद में और हम यहाँ से भी उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में यहाँ पे क्रिएट में यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट सेंटर दिखा रहा है, हमें कॉस्ट कैटेगरी भी चाहिए। तो यहाँ पे शो मोर करने का, शो मोर करने के बाद में यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी भी दिख जाएगी। तो अभी हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक ऑप्शन है क्रिएट करने के लिए, हम गो टू से भी कर सकते हैं। यहाँ पे गो टू में आने के बाद में यहाँ पे क्रिएट मास्टर, उसके बाद में कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे भी कॉस्ट कैटेगरी हमें दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम शो मोर करेंगे, उसके बाद में कॉस्ट कैटेगरी। अभी हमें कॉस्ट कैटेगरी हम क्रिएट करते, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी नाम की एक कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट है। अगर आपको उसको अल्टर करना है तो आप अल्टर कर सकते हो, बट अब अल्टर करने से आप मतलब आपको क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं। तो हमें वर्कर्स को सैलरी देनी, तो हमें कैटेगरी में वर्कर क्रिएट करना है। अभी हमने कैटेगरी क्रिएट कर ली। अभी हमें क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर। तो हम सेंटर में क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमें सैलरी किसको पेड करनी है तो उनके नाम हमें यहाँ पे सेंटर में क्रिएट करने हैं, जैसे कि अजय। उसके बाद में रोहित। हमें जिसको भी सैलरी पेड करनी है उसके नाम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, संजय। और राज। अभी हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर ली। अभी हमें क्या करना है, सैलरी पेड करनी है, मतलब हमें क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है सैलरी का। तो हम सैलरी का लेजर क्रिएट करते हैं। उसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते। अगर आपको एप्लीकेबल करना है तो आप एप्लीकेबल भी कर सकते हो। अभी हमने क्या किया, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर ली और साथ में सैलरी का लेजर भी क्रिएट किया। अभी हमें सैलरी पेड करनी है तो हमें पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में जाने का, यहाँ पे वाउचर में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें कैश में पेड करनी है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैश। और हमें सैलरी पेड करनी, तो हम यहाँ पे सैलरी का लेजर सेलेक्ट करते हैं। कितनी करनी है, 20,000। अभी यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कॉस्ट कैटेगरी ऑफ नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो अभी हमें पहले क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो अभी हम करते वर्कर। अभी हमने वर्कर सेलेक्ट किया। वर्कर इसमें कौन है, अजय। हमें अजय को देना है 5,500 रुपीज। उसके बाद में रोहित, रोहित को देंगे हम 4,500 रुपीज। उसके बाद में राज, राज को देंगे 5,000। और उसके बाद में है संजय, संजय को पाएंगे 5,000। अभी ये हो गया, हमने सैलरी पेड की वर्कर्स को
और वर्कर्स के नाम सेलेक्ट किए। तो हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके हमने यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कर ली। ये हो गई पेमेंट की एंट्री। अभी हमने इसका रिपोर्ट देखना है, तो हम कहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं? गेटवे ऑफ टैली में आने का, उसके बाद में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कैटेगरी वाइज कैटेगरी समरी, हमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब रिपोर्ट दिख जाएंगे। जैसे कि हमने कैटेगरी बनाई थी वर्कर, तो वर्कर में हमने किस किस को पेमेंट किया वो हमें यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है। अभी हमने यहाँ पे इंटर किया, तो आप मंथली भी देख सकते हो, मंथली रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हो। और आप यहाँ पे भी मंथली चेक कर सकते हो। उसके बाद में है लेजर ब्रेकअप, यहाँ पे आप लेजर वाइज चेक कर सकते हो। जैसे हमने सैलरी का लेजर क्रिएट किया और आपके पास कमीशन है, सैलरी है, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट है, ऐसे अलग अलग लेजर है। तो आपको लेजर वाइज अगर चेक करना है तो आप लेजर ब्रेकअप में आके चेक कर सकते हो, जैसे कि हम सैलरी का चेक करते हो ऐसे। उसके बाद में है ग्रुप ब्रेकअप, मतलब इसमें हमने क्या किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये ग्रुप में कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यूज की है, तो हम ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम और एक एग्जांपल लेते हैं कमीशन का। बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि कमीशन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में कमीशन मेंटेन कर सकते हैं। तो कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमें क्रिएट करना, हम क्या करते हैं, पहले कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। सेल पर्सन की कमीशन हमें किसको देना है, सेल पर्सन को। तो हम कैटेगरी में जाएंगे और सेल पर्सन क्रिएट करेंगे कैटेगरी। हमने सेल्समैन नाम से एक कैटेगरी क्रिएट की। अभी हमें सेंटर क्रिएट करना है, तो हम सेंटर में क्या करेंगे, यहाँ पे अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं सेल्समैन, और सेल्समैन में कौन कौन है हमारे पास, हम किसको किसको कमीशन देने वाले हैं। तो हमें सुनील, सुरेश और मुकेश को कमीशन देना है। तो हमें पहले सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सेंटर क्रिएट करते हैं। सुनील, यहाँ पे अंडर प्राइमरी ही रखना है। रमेश, और उसके बाद में है मुकेश। हमने सेंटर क्रिएट कर ली। अभी हमें लेजर क्रिएट करना है कमीशन का, क्योंकि हम कमीशन पेड कर रहे हैं, तो हमें कमीशन का लेजर क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो कमीशन का लेजर क्रिएट करते हैं। उसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हैं और इसको सेव करते हैं। अभी हमने लेजर क्रिएट कर लिया और कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया। अभी हमें पेमेंट की एंट्री करते, कमीशन पेड करते। अभी हम कमीशन बैंक से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं। बैंक का अंडर ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट। अभी सेव किया। अभी यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है क्या पेड कर रहे हो हम, कमीशन। तो हम यहाँ पे कमीशन का लेजर सेलेक्ट करेंगे, कितना कर रहे हैं, 10,000। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। जैसे हमने सैलरी पेड की, तो उसमें हमने कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट की थी, सेम वैसा ही कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेल्समैन सेलेक्ट करने का, उसके बाद में यहाँ पे हम जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करते तो कैटेगरी के अंदर जो भी सेंटर है कॉस्ट सेंटर, वो यहाँ पे दिख जाते हैं। तो हम यहाँ पे मुकेश को सेलेक्ट करते, उसको देते हैं 2,000 कमीशन दे रहे। और उसके बाद में है रमेश को देते हैं 5,000। और अभी है सुनील, अभी सुनील को है 3,000। अभी हमने जैसे
सैलरी की एंट्री की, वैसे ही हमने कमीशन की एंट्री भी की। अभी सेम रिपोर्ट अगर आपको चेक करना है तो आप सेम वैसे ही चेक कर सकते हो, जैसे गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। और एक तरफ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जैसे कि गो टू के ऑप्शन से, और जी उसकी शॉर्टकट की है। और यहाँ से आप सिर्फ आपको यहाँ पे शो मोर करके आपको जो भी रिपोर्ट देखना है, जैसे कॉस्ट सेंटर का आपको रिपोर्ट देखना है, आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जैसे ही सर्च करोगे, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के आपको सभी रिपोर्ट आ जाएंगे। जैसे हमने उधर चेक किया था, सेम वैसे रिपोर्ट इधर आते हैं। ये हो गया कॉस्ट सेंटर। अभी हम कभी कभी क्या होता है, हम डिपार्टमेंट वाइज सैलरी पेड करते हैं, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज सैलरी पेड करते हैं। तो उसकी भी एंट्री हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर में जाके क्रिएट करने, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में डिपार्टमेंट के नाम क्रिएट करने के, अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, और सेंटर में वो डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो क्रिएट करने का। और जैसे हमने कमीशन की, सैलरी की एंट्री की, सेम वैसे ही करने की। थैंक्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल। Okay, thank you Tejashree and Aarti for your wonderful presentation. So now it's a time for overview of the today's session. It's over to you, Mr. Bhagwati sir. Yeah, thank you, Anga, and thank you, everyone. So, hi, good evening, everyone. Myself is Bhagwati Jhanjaria. So, today's session is for the cost center and cost category. So, I want to describe what is a cost center and cost category. Practical demonstration आपने देख लिया, theoretical देख लिया. तो एक्चुअल हम अपने इसको बिजनेस में कैसे और डिफरेंट तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं, उस रूल्स के बेस पे आप एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को एक लेजर ही आप अपने बुक्स में शो कर सकते हैं। एग्जांपल की तरीके से मैं देखूं, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिकल्स एक्सपेंस। आज मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम राज्यलक्ष्मी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आपने अपने प्रॉफिट लॉस में, आपके पास मल्टीपल ब्रांचेज है, लेकिन आपके प्रॉफिट लॉस में इलेक्ट्रिसिटी का अगर लेजर यूज करना है तो आपको एक ही यूज करना है, टेलीफोन यूज करना है तो एक ही यूज करना है, पोस्टेज यूज करना है तो एक ही यूज करना है। तो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स आप ये देखेंगे कि कोई भी एक बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस बनता है तो उसमें एक लेजर को एक ही बार यूज किया जाता है, न कि ऐसा किया जाता है कि टेलीफोन एक्सपेंस मुंबई, टेलीफोन एक्सपेंस बड़ोदरा, टेलीफोन एक्सपेंस कोलकाता, ऐसा नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में अब हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेज है, हम मल्टीपल ब्रांचेज के एक्सपेंसेस को हम एक ही कंपनी हमारी, उसमें मल्टीपल ब्रांचेज को मेंटेन करना चाहते हैं, और वो मल्टीपल ब्रांचेज के मल्टीपल एक्सपेंसेस को हम ब्रेकअप भी करना चाहते हैं। और हमें उन एक्सपेंसेस को हमें ये देखना भी है कि मेरा कंपैरिजन भी एनालिसिस करना है, मुझे ये भी देखना है कि कौन से ब्रांच में कितना एक्सपेंसेस कौन से हेड में जा रहा है, और या डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक अभी आपको तेजस्वी ने बताया कि कमीशन, लाइक अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस लाइक सैलरी। तो एक ब्रांच के मल्टीपल डिपार्टमेंट और मल्टीपल ब्रांच के मल्टीपल डिपार्टमेंट के मल्टीपल एक्सपेंसेस, लेकिन लेजर हमारा एक ही होगा बैलेंस शीट में। ये कैसे मैनेज हो सकता है? दिस इज अ वेरी क्रिटिकल ऑफ द एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, लेकिन टैली प्राइम में इसको इतना इजी कर दिया गया कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसको आप देखेंगे कि आप अपने एक लेजर को मल्टीपल ब्रेकअप करने के लिए मल्टीपल आप उसके अंदर में कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर खोल लीजिए, उसका नाम अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको कंफर्टेबल हो उस कंफर्टेबल के हिसाब से, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से दे दीजिए। ब्रांच है तो ब्रांच को कैटेगरी बना लीजिए, उसके अंदर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बना लीजिए। वेरियस टाइप ऑफ द हायरार्की आप बना सकते हैं, वहां पर कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि एक के अंदर में दूसरा, दूसरे के अंदर में तीसरा नहीं बना सकते। यू कैन मेंटेन द ड्रिल डाउन लाइक प्रोसेस कि एक के अंदर में दूसरा, दूसरे के अंदर में तीसरा, वैसा बना सकते हैं कि एक ब्रांच होगी, ब्रांच के अंदर में डिपार्टमेंट हो गए, डिपार्टमेंट के अंदर में मल्टीपल एक्सपेंसेस हो गए, मल्टीपल एक्सपेंसेस के अंदर में मल्टीपल लोग हो गए। तो इस टाइप की हायरार्की आप सेट कर सकते हैं इसमें, और आप अपने पूरे के पूरे अकाउंट्स को एक जगह
एक एक स्क्रीन पर पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं और उसके एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मल्टीपल ब्रांचेस के प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट अगर आपको चाहिए, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, तो सिंगल एक लेजर, एक ही कंपनी में आपको कहीं बाहर नहीं जाना, एक ही कंपनी में आप ये पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को यूज करते हुए मल्टीपल ब्रांचेस के अकाउंटिंग को भी मैनेज कर सकते हैं और आप अपने हर ब्रांचेज के प्रॉफिट लॉस, हर ब्रांचेस के ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट को मेंटेन कर पाएंगे और उसको निकाल पाएंगे कि हमारी किस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट क्या है, और उसके बेस पे आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे और उस कंपैरिजन के बेस पे आप अपने डिसीजंस ज्यादा बेटर और कर पाएंगे। इससे आपका अल्टीमेटली आपको अगर फिंगर टिप्स पे रिपोर्ट मिलेगी, यू कैन मेक अ डिसीजन वेरी फास्टर एंड वेरी सून। इससे आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा और फास्ट ग्रो करेगा, उससे आप और ज्यादा बेनिफिट्स ले पाएंगे। एंड सेम वे डिफरेंट तरीके से हमने देखा है, गोडाउन्स को भी मेंटेन करते हुए, स्टॉक को भी मेंटेन करते हुए, वेरियस टाइप ऑफ द वे आप इसको हैंडल कर पाएंगे। एक और तरीका है, एग्जांपल किसी के यहाँ ब्रोकर्स है, एजेंट्स है। आज हमें बहुत सी कंपनियों में देखना होता है कि लोगों को ये रिपोर्ट चाहिए होती है कि मैंने कौन से एजेंट के थ्रू कितना माल बेचा है। आप कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को यूज करके देख सकते हैं, आपने किस ब्रोकर के थ्रू कितना पेमेंट रिसीव किया है, ऑफ कोर्स यू कैन डू। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का, उसका यूटिलाइजेशन मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मतलब कहीं एक लिमिटेशंस नहीं है, आपको जैसे जिस तरीके से जहां जरूरत हो आप अप्लीकेबल कर सकते हैं और उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो दिस इज वेरी एडवांस एंड वेरी वाइड एंड मैं आपको बोलूंगा कि अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल्स है जिसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करके उसके एडवांटेज को ले सकते हैं। दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द फ्रॉम माय साइड। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अनगा, यू कैन carry on, please. Okay, thank you so much, sir, for your valuable time. So now, if you have any questions, you can mention in the chat or raise your hands. Sir, can you please check if there are any questions there? Yeah, we have one question from the Mr. Ravi Sukla. So Okay. ma'am, Mr. Ravi, I will give you access to, you can discuss over here. तो मैं आपको एक्सेस देता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करें ताकि हम लोग आपके इस आंसर को यहाँ कर पाएंगे। प्लीज मिस्टर रवि। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि अगर हमारा फिक्स एसेट में कई सारे लेजर्स रहते हैं, बनाए रहते हैं हम, हाँ, तो एक सिंगल लेजर पे अगर हमने मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स बना रखे हैं तो क्या वो एक एक्सेल में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि ये हमारा लेजर है और इसके अंदर मल्टीपल जो कॉस्ट सेंटर है या कॉस्ट कैटेगरी टैगिंग हो रखी है उसका रिपोर्ट और उसका बैलेंस हमें मिल जाए? ऑफ कोर्स मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट करके दिखाया है, आप अपनी एक जगह एक डेमो कंपनी बना करके देख लीजिए। तो मैं लाइव डेटा में पहले एक डेमो कंपनी बना लीजिए, उसमें करके देखिए और आप उसको कोई भी रिपोर्ट को टैली में, तो आप किसी भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। आपकी एक फिक्स एसेट है, आप उसके अंदर में मल्टीपल आपके लेजर्स है, मल्टीपल लेजर्स के अंदर में मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स है और वो मल्टीपल कॉस्ट सेंटर के बेस पे आपको रिपोर्ट चाहिए होती है, राइट? या मिस्टर रवि? यस सर, लेकिन उसमें मतलब एक लेजर का एक ही कॉस्ट सेंटर उसमें शो कर रहा है मेरी अगर जो रिपोर्ट दिखा हूँ, बट मुझे उसके अंदर जितने भी मतलब कॉस्ट सेंटर टैगिंग है वो सारे मुझे चाहिए सिंगल। उसमें बैलेंस ये ईयर टू डेट जैसे रहता है कि एक लमसम मतलब अमाउंट आ जाएगी टोटल आज तक का इस कॉस्ट सेंटर में ये बैलेंस आ रहा है। श्योर रवि, आप जरूर ये कर सकते हैं, इसके लिए कोई कंसर्न नहीं है। आप एक काम करें, आपको अगर कोई चैलेंजेस आ रहा है तो हमारे चैटबॉट में यहाँ पर नंबर डाले हुए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर लें हमारे सपोर्ट सेंटर को, और आपके साथ जो भी लोग कनेक्टेड है हमारी कंपनी के में, उनमें आप उस अकाउंट मैनेजर से डिस्कस कर लें, तो हम आपको ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम आपको कंप्लीटली दे देंगे। ओके सर, श्योर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर रवि, थैंक यू। So if you have anyone have any questions, so please contact, please raise your hand.
Yes, Mr. Bhagwati, request you to please check your chat box. If there is any questions, let us help them. All right. So by the meantime, request everyone to please check out and follow our social media sites and do visit our website as well. And specifically do check our YouTube channel. You can use our YouTube channel as an academy as well. And specifically, if you have any new joiners who are joining your organization related to any accounts field or any kind of software related or system process related field, request you to please do connect like our YouTube channel. You will really get a wonderful knowledge through our YouTube channel. So Mr. Bhagwati, any questions? No, Deepa. All right, that's good to go then. So, all right, so this is all about today's session. And yes, we are running out multiple offers by focusing Independence Day as well. We have some offer. So please do connect us personally. We will look into your history, organizational history, your working style process, and we will ensure you that we will provide you the best offer onto it as well. So thank you so much, Aarti, and thank you so much, Tejashri, for your presentation and for your live demo as well. And I would like to tell spectators that if you really have any concerns or if you really have any suggestions to improve our webinar or to any specific topic for the webinar, request you to please connect us. We will be very happy to support you and to help you. And Mr. Bhagwati, would you like to add on something here? No, Deepa, I think we All clear. right. Yeah. Perfect. Thank you so much, Bhagwati, as well for your wonderful add-on. And I think this add-on really adds value towards the entire topic. So that's it for today's session, and wishing you all a 75th Independence Day. I hope you will have a wonderful time and wonderful weekend as well. So thank you so much. Please help us with your suggestions. I think it would really help us to improve our system and the process. So see you soon in some other webinar. Thank you so much. Take care and bye-bye.